Hello students, welcome to our next video, and in this video we are going to learn a new chapter, and chapter is chapter 6 from class 7th of NCERT math book. The chapter's name is The Triangle and Its Properties. So I think you know what is a triangle. So in this chapter we will learn some of the new properties of triangle. Okay, some of the properties we have already heard somewhere and we'll learn more about it. Okay, so let's start. So let us understand a triangle. What is a triangle? Let's recall first. A triangle is a simple closed curve made of 3 line segments. आपको simple closed curve क्या है ये बताया गया था. ये एक simple closed curve है जो line segment से बना है, और क्योंकि ये closed है और कितने line segments यहाँ पे चाहिए 3 line segments से, तो आपको सबसे छोटा simple closed curve जो सबसे कम क्या लाइन सेगमेंट से बनता है वो एक ट्रायंगल होता है. ठीक है, सो इस ट्रायंगल को देखकर आप ये बता सकते हो इस ट्रायंगल में हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर. 1 2 3. हाउ मेनी साइड्स आर देयर. 1 2 3. एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर. 1 2 and 3. So there are 3 sides, 3 angles and 3 vertices. So and you also know how to name them. The sides name are, इसे हम नेम कैसे करते हैं, A and B. One side has 2 points, okay, 2 end points. So this is AB. Next is BC. Next is CA, or you can write AC. Okay. Now angles, angle, यहाँ पे एक एंगल बना है. आपको पहले से बताया गया था जहाँ पे एंगल बनता है उस पॉइंट को आप बीच में रखोगे और बाकी दो को दो साइड में. सो यहाँ पे अगर हम ए एंगल को शो करना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, CAB. जिस तरह से एंगल फॉर्म होता है CAB लिख सकते हैं, या फिर उल्टे डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं. सो दिस इज सपोज BAC एंगल. ओके, नाउ इस एंगल को क्या नाम देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं ABC. हो गया ये एंगल. सो दिस इज ABC. एंड थर्ड वन इज यहाँ पे C है, यहाँ से शुरू करो ACB. ठीक है. So next come to vertices. How many vertices are there? 3 vertices. 3 vertices are the points only. So write the points A, B and C. Okay, done. Now let's come to, it is also a recapitulation, classification of triangles. आपको triangles के classification के बारे में पता है. We generally do it in 2 ways, right? Based on sides and based on angles. So based on sides, triangles are of 3 types. One is equilateral triangle. Second is isosceles triangle. Third is scalene triangle. So equilateral triangle is the triangle in which all 3 sides are equal. So if you draw equilateral triangle, उसका तीनों का तीनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ का होगा. आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इक्वल नहीं है. नेक्स्ट कम टू स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल इज समथिंग वेयर नो साइड्स आर इक्वल. ठीक है, सो कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये आपको पता है ऑलरेडी, बस हम थोड़ा सा याद करते हैं. तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, लेट्स स्टडी triangles based on angles. Okay, so basically triangle based on angles are categorized into 3 types. One is acute angle triangle, second one is obtuse angle triangle, and third one is right angle triangle. So what is an acute angle triangle? The triangle in which all 3 angles are less than 90 degree is called acute angle triangle. Obtuse angle triangle is any one angle is more than 90 degree. So here you need to, acute angle में सारा का सारा 3 जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, पर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में किसी एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाता है. अल्टीमेटली बाकी के जो 2 एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम ही आएंगे. ठीक है. नाउ कम टू राइट एंगल ट्रायंगल. एनी वन एंगल is 90 degree in measure. So the triangle in which any one angle is 90 degree in measure, it is called right angle triangle. एक right angle triangle में only एक ही right angle possible है और बाकी 2 automatically acute angle बन जाएंगे. ठीक है. So these are the triangle based on angles. Okay, now come to solve some of the questions regarding this basic concepts of triangle. So write the side opposite to the vertex Q of triangle PQR. So यहाँ पे एक triangle PQR के बारे में बताया गया है. ड्रॉ कर लेते हैं पहले PQR.
उसमें पूछा गया है साइड ऑपोजिट, कौन सा साइड ऑपोजिट है, किसका ऑपोजिट, वर्टेक्स क्यू का ऑपोजिट। क्यू के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, यहाँ पे क्यू है तो उसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, ये है साइड। ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन को, क्या आपको पूछा क्या गया है, भाई साइड के बारे में पूछा गया है, क्यू के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, कौन सा साइड है, पी आर है, सो आंसर क्या होगा, पी आर। पी आर इज द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। Now come to this angle opposite to the side LM of triangle LMN। यहाँ पे ट्रायंगल LMN के बारे में पूछा गया है। ट्रायंगल LMN में एंगल ऑपोजिट टू साइड LM, LM साइड के ऑपोजिट में कौन सा एंगल आपको दिख रहा है, एन एंगल। किसे इसे एन एंगल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन को बीच में रखेंगे, LNM। सो आंसर इज LNM। ठीक है, सो नाउ vertex opposite to the side RT of RST, so triangle is RST। यहाँ पे पूछा गया है RT के वर्टेक्स ऑपोजिट में, RT के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है। यहाँ पे आपको वर्टेक्स का नाम लिखना है, सो आंसर इज कौन सा वर्टेक्स है, एस है, एस वर्टेक्स है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कम टू, इस तरह से आप कर सकते हो, कोई भी ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है तो पहले ड्रॉ कर लो तो आपको इजी हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू दिस वन, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स एंड एंगल्स। आपको साइड एंड एंगल बोथ को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करना है। सो इन दिस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल 8 cm, 8 cm and 5 cm, so there are two 8 centimeters are present, that means two sides are equal, that means it is a based on side, it is a isosceles triangle। isosceles triangle and based on angles, एंगल को आप देखकर बता सकते हो ये तीनों के तीनों एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी इस पर आओ, इस पर आते हैं। ये फिगर आप देखकर बता सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री बना है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एंगल इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इसके तीनों जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं, सो दिस इज स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, एंड अकॉर्डिंग टू एंगल इट इज राइट एंगल, right angled triangle। okay, next come to this one, this is also right angle triangle but it has two equal sides। okay, so this is isosceles triangle and according to angle it is right angle। okay, and now this come to this one is a obtuse angle triangle, you can see angle wise, and it is a 3 centimeter and 3 centimeter, two sides are equal, so again it is isosceles and angle wise it is obtuse angled। ठीक है, आई थिंक ट्रायंगल के बारे में यहाँ तक जो भी पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ज्योमेट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, तो आराम से धीरे धीरे करके समझ के याद रखो, इट विल बी हेल्पफुल। फॉर नाउ दिस मच, थैंक यू सो मच।